Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject chapter 1. In our previous video, we will read our chapter completely. Now we will complete the exercise of chapter 1. So please open your computer book in page number 11. In page number 1, exercise question number A, tick the correct answer. We also completed in our previous video, but no one student completed till now, so I explain again it. Okay, so in first question number A, take the correct answer. We will tick in one box which are correct. Question number first is, which computer is designed for home and personal use? तो जो कंप्यूटर है वो घर और पर्सनल यूज के लिए जो डिजाइन किया गया था वो कौन सा है? तो हमारा है डेस्कटॉप. सो यू विल राइट टिक हियर. क्वेश्चन सेकंड, ए थर्मोमीटर इज ए सिंपल कंप्यूटर. सो थर्मोमीटर जो है सिंपल कंप्यूटर है. कौन सा कंप्यूटर है? तो इसमें आपको पाम टॉप, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड. तो हमारा आंसर है एनालॉग. तो इसमें हम यहाँ पर टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंप्यूटर इज पर्सनल कंप्यूटर? तो पर्सनल कंप्यूटर इज माइक्रो कंप्यूटर्स. तो वी विल टिक हियर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, which computers are specially designed computers that perform complex calculations extremely rapidly? So our answer is supercomputer. So we will take here. Now last, a dash is a high performance computer used for a large scale computing purpose. So in this question our answer is mainframes. So we will tick here. So in first desktop, second analog, third micro, fourth super, and fifth is mainframe. You also write in your book with the help of pencil. Okay, don't use any color of pen in your book, only use pencil. Now next page, in page number 12, question number B, fill in the blanks. Question first, laptop is a portable computer and also known as जो लैपटॉप है एक पोर्टेबल कंप्यूटर. पोर्टेबल मीन्स जिसे हम आसानी से वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ले जा सकते हैं. इसको हम एक और इसका जो नेम है वो किस नेम से हम इसको जानते हैं? तो इसको जब हमने व्हेन वी रीड अवर चैप्टर वी ऑल्सो नो अबाउट दैट. So we will write notebook. Okay, notebook. Now second fill in the blank is, the feature of dash and dash machine is combined to create hybrid computer. So our answer is analog and digital. Analog and digital. Now next question is, a microcomputer can be. जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो कैसा हो सकता है? तो इसमें हम लिखेंगे डेस्कटॉप और लैपटॉप. ओके, डेस्कटॉप और laptop. Now next fill in the blank is, a mainframe computer is much bigger than. जो mainframe कंप्यूटर होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है. किस किस से होता है, किस किस से ज़्यादा बड़ा होता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स. ओके, माइक्रो एंड mini computers. Now last fill in the blank is, the speed of computer can be measured in. तो इस पे हम लिखेंगे
माइक्रोसेकेंड और नैनो सेकेंड, माइक्रोसेकेंड और नैनो सेकेंड, ठीक है, माइक्रोसेकेंड और नैनो सेकेंड. You also write in your book with me. Okay. Now next question. See, write the characteristic of computer in the blank circle. तो इसमें आपको जो कंप्यूटर की विशेषताएं होती है, उसकी जो खासियत होती है उसके बारे में पॉइंट्स सर्कल में राइट करना है. यहाँ पे आपको 3 ऑलरेडी दे रखे हैं, बाकी के 3 आपको खुद से करना है. जैसे यहाँ पे आपको डिलीजेंस दे रखा है, एक्यूरेसी दे रखा है, ओके, और बाकी की आपको खुद को करना है. व्हेन वी रीड दिस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स लाइक स्पीड, डिलीजेंस, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी. सो यू विल कंप्लीट दिस. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको आप मैचिंग करना है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. सो माइक्रो कंप्यूटर is a desktop computer, so we will write 1 here. Okay. Now second, mini computer is a computer server. Third, mainframe computer is large scale computing. Now fourth is supercomputer which do complex calculation, so we will write 4 here. So in question number D, 4, 1, 2, 3 we will write here. Okay, 4, 1, 2, 3. Now next page, page number 13, question number E. Guess who I am. In this question we will read the question and understand about the answer. यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और जो हमारा आंसर है उसको हम यहाँ पर बॉक्स के अंदर राइट कर देंगे. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, आई एम ए टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजुअली यूज्ड एट होम. तो जो कंप्यूटर का टाइप बता रखा है जिसका यूज हम होम पर मतलब घरों में करते हैं, तो वो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर डेस्कटॉप. ओके, यू विल राइट डेस्कटॉप. सेकेंड क्वेश्चन इज, आई एम ए पोर्टेबल कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज नोटबुक. यहाँ पे आपको पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में बता रखा है जिसको हम नोटबुक के नाम से जानते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं. मेनी ऑफ द पेरेंट्स हैव इट, यू ऑल्सो used it, so our answer is laptop. Now third, I am much bigger than micro and mini computers. अभी हमने fill in the blanks में भी इसके बारे में पढ़ा है कि जो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको होता है मेन फ्रेम. Okay, mainframe. Now last, I am used for complex types of applications. जो complex type के applications में जो कंप्यूटर यूज होता है वो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर. तो we will write सुपर कंप्यूटर. तो in first we will write desktop, in second laptop, in third mainframe, and fourth super computer. Now question number F, answer the following in short. So my dear student, we already know about it that we will not make any CW for computer subject. The answers of that questions we will take in our book. Okay, so you will not make any CW for computer subject. For question number first is, for what is desktop computer is designed. अभी आपको बताना है कि जो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसे किस यूज के लिए डिजाइन किया गया
था। तो इसका आंसर हम बुक में ही फाइंड करेंगे और टिक करेंगे। तो हम ओपन करते हैं पेज नंबर 6। ओके, पेज नंबर 6 ओपन करेंगे हमारी बुक में। तो आप भी जल्दी से बुक में पेज नंबर 6 ओपन करेंगे। ओके, ये मैंने पेज नंबर 6 ओपन कर लिया है। इन पेज नंबर 6 यू विल सी हियर इन डेस्कटॉप, a desktop computer is designed for home and personal use. You can carry this computer from one place to another place easily. It is also called PC or personal computer. So you will tick here, from here to here. Full paragraph we will tick. Answer number first. And so you also tick here to here and also write 1 here. And we will also write page number here, page number 6. Whenever we learn that questions, जब भी हम एक क्वेश्चंस लर्न करेंगे तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि पेज नंबर 6 पर इसका आंसर है, ताकि हमको उसको फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो, आसान इजीली हम इसको फाइंड कर सकें और लर्न कर सकें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज, so you also write page number 6 here. Okay, now page second, next question is what is a laptop? So this, what is a laptop? So again we will open page number 6. Okay, and tick here. A laptop is a portable computer and also known as notebook. You can carry this laptop from one place to another place easily. यहाँ पे आपको टिक करना है, यहीं से ऐसे यहाँ तक. यहाँ पे हम 2 नंबर राइट कर लेंगे क्योंकि हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. ओके, यहाँ पे आपको एक याद रखना है कि ये जो फॉर्म लिखा है ये गलत लिखा है. यहाँ पे FORM लिखा है, फॉर्म लिखा है, बट यहाँ पे जो आता है वो आएगा फॉर्म. तो इसको हम सही करेंगे. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने टिक कर लिया है, जो कि हमने पेज नंबर 6 पर टिक किया है, इसलिए हम क्वेश्चन के बाद भी यहाँ पर पेज नंबर 6 राइट कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड एनालॉग कंप्यूटर? यहाँ पे आपको बताना है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया है. तो यहाँ पे हम उसका आंसर छोटा सा है, इसलिए यहीं पर इसका आंसर राइट कर देंगे. तो इसका आंसर है लॉर्ड कैल्विन. ओके, लॉर्ड कैल्विन. लॉर्ड कैल्विन, LORD KELVIN, लॉर्ड कैल्विन. Now next question number 4, where we use to see hybrid computers? तो इसके लिए हम पेज नंबर 7 ओपन करेंगे यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा है सेकेंड लाइन में U, बट आपको वो कट करना है. उसके प्लेस पर क्या लिखेंगे हम? V. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, U को कट कर दिया है मैंने और V उसकी प्लेस पे हमने V लिख दिया है. तो यू कैन सी हाइब्रिड कंप्यूटर इन हॉस्पिटल्स, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. यहाँ पे आंसर नंबर 4 को टिक कर लेंगे. यू फ्रॉम हियर टू हियर एंड ऑल्सो राइट 4. ओके, वी ऑल्सो राइट पेज नंबर 7 फॉर आंसर नंबर 4. Now next question, what is a server? ये आंसर हमको बुक में डिटेल में नहीं है, इसको समझने के लिए मैं इसका आंसर यहीं पे राइट कर रहा हूँ. आप भी इसको आंसर को यहीं पर राइट कर लेंगे. तो जो सर्वर है इसका आंसर मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ. ए सर्वर इज ए कंप्यूटर
or system that provides resources comma data comma services or programs to other computers over a नेटवर्क। तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा ए सर्वर is a computer or system that provides provides that provides resources, data, services or programs to other computers over a network। जो सर्वर होता है एक कंप्यूटर या सिस्टम के रूप में होता है जो कि अन्य दूसरे कंप्यूटर्स को प्रोग्राम, सर्विस, डाटा और रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है नेटवर्क पर। ओके, यू ऑल्सो राइट दिस इन योर बुक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी, आंसर द फॉलोइंग इन लॉन्ग। First question is, what is a computer system? So for this answer we will open page number 5 where our chapter is start। यहाँ पे आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताना है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे यहीं से नंबर 1 मैंने डाल चुका हूँ। ए कंप्यूटर सिस्टम इज ए सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट वर्क्स together to accomplish one or more tasks. Computers are available in different size, shapes and weights. Due to different size and shapes, they perform different tasks from one another. ये आपका आंसर नंबर 1 हमको यहाँ से यहाँ तक टिक करना है, from here to here. We also write the page number after the answer, page 5. Okay, so our first answer we take here to here. Now next question, second, on what basis computer is classified? अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर किस बेसिस पर क्लासिफाइड हुए हैं, डिवाइडेड हुए हैं, कैटेगराइज हुए हैं उसको बताना है। तो वी अगेन ओपन पेज नंबर 5। वी टिक हियर टू हियर, यहाँ पर हम टिक करेंगे यहीं से, बट यहाँ पर जो दे लिखा है, यहाँ पर जो दे लिखा है इसको कट कर कर हम लिख लेंगे यहाँ पर कंप्यूटर्स। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल साइज, फंक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग कैपेसिटी। यहाँ से हमने यहाँ तक तो टिक कर लिया है, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, इसको हम नेक्स्ट पेज पर भी टिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आपको दे रखा है सबसे फर्स्ट हमें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल साइज, कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पे केवल आपको यहाँ से 3 पार्ट्स जो है यहाँ तक, इसकी केवल नेम हमको लर्न करना है, उसका डिटेल हम पहले से नेक्स्ट हमारे शॉर्ट आंसर में लर्न करेंगे। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल साइज, कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप, ये टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पर हम यहाँ से ये टिक करेंगे यहाँ तक, 1 एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एंड नेक्स्ट पेज classification on the basis of processing speed and storage,
कैपेसिटी कंप्यूटर आज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, या हम यहाँ पे 3 पार्ट्स को टिक 4 पार्ट्स है यहाँ पर टिक कर लेंगे 1 2 3 4 माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा वहाँ पर स्टार्टिंग से कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल साइज, फंक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग कैपेसिटी। फिर हम यहाँ पर केवल वन लाइन ये टिक करेंगे और उसके टाइप्स डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, यहाँ पर हम यहाँ से टिक करेंगे और ये एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये पूरा पॉइंट लेना है बस। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इट इज ऑल्सो known as types of digital computers, micro, mini, mainframe and super computer। ये हमारा आंसर नंबर 2 हो चुका है। ओके, यहाँ पे हम पेज नंबर 5 6 7 8 केवल शॉर्ट है, इसके हमने डिटेल में लर्न नहीं करना है, केवल इसके जो पार्ट्स टाइप्स हैं केवल वो लर्न करेंगे हम पेज नंबर 7 6 8 के। Now next question, write short note on mainframe computer। यहाँ पे आपको mainframe computer पर short note राइट करना है, जो कि हमको पेज नंबर 9 पर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इन पेज नंबर 9 mainframe computer का जो पैराग्राफ है इसको हम टिक कर लेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 3rd। So we will tick here to here for answer number 3 in page number 9. We will write page number 9 here. Okay. Now last question is what is supercomputers? Write the names of applications where supercomputers are used। यहाँ पे आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में बताना है कि वो क्या होता है और उसमें कौन कौन इसका किस जगह पर किस लिए यूज़ होता है वो भी बताना है। तो इसके लिए हम पेज नंबर 9 पर आएंगे, सुपर कंप्यूटर के वाले पैराग्राफ पर, पेज नंबर 9 पर। इन पेज नंबर 9 वी सी हियर supercomputer is different type of computer. It can be used for complex type of application, for example scientific research, weather forecasting, earthquake studies, nuclear weapon designing, etc. India's first supercomputer Param 10000 was developed by CDEC Pune in year 1998. India's fastest supercomputer is ECA designed by Tata। So हम टिक करेंगे यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 4। तो हमने सुपर कंप्यूटर वाले आंसर को, लास्ट क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक टिक किया है। इसके क्वेश्चन की प्लेस पर भी हम यहाँ पर पेज नंबर राइट कर देंगे, पेज नंबर 9। ओके, पेज नंबर 9। Now our chapter is completed. All the exercise, all the questions we will complete it. Now your homework is that you will learn all the question answers of lesson 1. You will learn all the question answers of chapter 1. It's your homework. Okay, thank you.